ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سیدہ کائنات نے عرض کی، بابا جان یہ بتائیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا جان آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ میں معراج کی شب جب میں نے اللہ اکبر جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے جن عورتوں کو، اپنی امت کی جن عورتوں کو عذاب الہی میں گرفتار دیکھا، آج وہ عورتوں کا عذاب مجھے یاد آ رہا ہے اور ان پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ رسول جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کریں، وہ رسول جو ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کریں، وہ رسول جو اپنی اولاد، ہم اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ حضور ہمیں پیار کرتے ہیں، ہماری اولاد ہم کو جتنا پیار کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے رسول ہم سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے کیا کوئی آنسو بہاتا ہے؟ ہم خود بھی آنسو نہیں بہاتے، مگر قربان جائیں سید المعصومین کی ہم لوگوں سے محبت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی شب جب میں نے عورتوں کو جہنم میں مشاہدہ کیا، ان پر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 گنہگار عورتوں کا ذکر کیا، یہاں اختصار کے ساتھ ان 6 کا ذکر کرتے ہیں، 2 پر تبصرہ نہیں کریں گے، تیسری عورت سے جو ہے تھوڑی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ امید ہے میری یہاں پر موجود ہر بہن توجہ کے ساتھ سنے گی۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی میں طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اس لیے عورتیں تو یوں بھی نازک ہوتی ہے، عورتوں کو صنف نازک کہا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا، ایک عورت کو جہنم میں دیکھا گیا، اللہ اکبر، کہ اس کو بالوں کی وجہ سے بالوں کے بل جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا ہے اور اس کی کھوپڑی اس طریقے سے کھول رہی ہے، اللہ اکبر، جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے صرف جہنم میں لٹکایا جانا ہی بہت بڑی چیز تھی عذاب کے اعتبار سے، لیکن اللہ اکبر، بالوں سے باندھ کر لٹکایا جانا، پھر کھوپڑی کا اس طریقے سے کھولنا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی جو ہے وہ کھولا کرتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں بغیر دوپٹے کے نکلا کرتی تھی گھر سے، اجنبی مردوں سے بغیر دوپٹے کے ملاقات کیا کرتی تھی۔ آج دیکھ لیں عورتیں فیشن کے نام پر دوپٹوں کو گلے میں لٹکا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری عورت سے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک عورت کی زبان بہت لمبی تھی اور زبان کے بل جو ہے اللہ اکبر اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں سیدہ نے پوچھا تو فرمایا وہ اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی، منہ چلاتی تھی اور شوہر کا دل دکھاتی تھی، شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری جہنمی عورت کا ذکر کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی
اللہ اکبر معمولی انسان کا قول نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں، اللہ اکبر یہ اس رسول کا فرمان ہے کہ جس کی نالین کے ذرے جھڑتے ہیں تو کروڑوں کو بولنے کا شعور نصیب ہوتا ہے، کروڑوں اہل زبان بنتے ہیں۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے باندھ کر، چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتوں کے لیے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی۔ یقیناً ناسک کی خواتین ایسی نہیں، ہندوستان کی خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے۔ دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو، اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقل کرو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کے حبیب نے، غیب داں نبی نے 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیا سے متعلق ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مغربی تہذیب کے چکر میں، آج فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے؟ بے حیائی۔ اللہ اکبر۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا؟ جہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دے جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھانسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر میری بہنوں، اگر کوئی بہن اس میں گرفتار ہے تو اس کو بتانا کہ دنیا کے اندر عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تو آزاد عزت دار عورت جو بالکل شریعت کے پیمانے کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور دوسری کنیز عورتیں۔ کنیز عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دور تھا کنیزوں کا دور، اس دور میں کنیزوں کو اللہ اکبر رکھا جاتا تھا، اور جب کنیزیں ہوتی تھی تو اس کا کنیز رکھنے والا اس کے بھائی کو کوئی سالہ نہیں مانتا تھا، اس کے ماں باپ کو سسر نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج کنیزوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر یہ جو ناجائز تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا ہے، در پردہ عورت کو کنیز ہی بنایا جا رہا ہے۔ قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے، قیمتی تحفوں
की लालच दी जाती है, मोहब्बत के नाम पे कनीज बनाया जाता है। जब चाह छोड़ दिया, जब चाहा बुला लिया। याद रखना, एक मोमिना औरत के लिए सबसे कीमती सरमाया उसके लिए हया है। और याद रखना, दुनिया की कोई नेमत चली जाए, मेहनत करके फिर हासिल कर सकती हो, हया वो सरमाया है। एक मर्तबा चला गया, इज्जत वो सरमाया है, एक मर्तबा वो चली गई, आबरू वो सरमाया है, एक मर्तबा वो चली गई, दोबारा हासिल नहीं हो सकती। आबरू का सौदा करके दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। दुनिया का नुकसान क्या मेरी बहनों, अगर अल्लाह अकबर मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर, अफेयर के नाम पर, नाजायज ताल्लुकात के नाम पर अगर शादी भी हो गई, 2% लोगों की शादी होती है, 98% लोगों की शादियां, 98% लोगों की शादियां नहीं होती। अल्लाह अकबर, इसलिए कि नौजवान लड़के, खास तौर पे मर्द, इस कदर माज़अल्लाह अय्यारी का शिकार होते, इस मामले में मक्कारी का शिकार होते हैं। जिस तरीके से एक भौरा फूल का रस चूस करके दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करता, उसी तरह मर्द जो है मोहब्बत का झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर, शादी की लालच देकर, कीमती तोहफे देकर, अल्लाह अकबर, औरत का सब कुछ लूट लेते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाती है। मगर याद रखें, ये सब अगर उसके साथ हो रहा हो जो कलेमा पढ़ता हो, जो ईमान वाला हो, जो मुसलमान हो, तो भी ये बहुत मायूब है। इस्लाम ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। मगर क्या करें, अब हम वो दुख वाले दिन देख रहे हैं, वो तकलीफ वाले दिन देख रहे हैं। कल तक तो ये सारे नाजायज मामला मुस्लिम लड़कों के साथ होते थे, लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ करती थी और उसकी भी इस्लाम और मुस्लिमीन ने, उलमा ने कभी तायद नहीं की। और अब हालात ऐसे पलटा खा रहे हैं, अल्लाह अकबर, के कलेमा पढ़ने वाली लड़कियां मुनकिरीन इस्लाम से, अल्लाह अकबर, नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही है। और वो लोग मजबूत अल्लाह एक साजिश के तहत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत अच्छे गिफ्ट देकर, कीमती गिफ्ट देकर, अलग अलग तौर की लालच देकर बच्चियों को माज़अल्लाह अल्लाह अकबर जराइम में गिरफ्तार कर रहे हैं। और कभी कभी मजहब से भी दूर कर देते हैं, कभी कभी मुर्तद भी कर देते हैं, इस्लाम से भी फेर देते हैं। याद रखना मेरी बहनों, अगर जान देकर ईमान बचे तो सौदा सस्ता है, इसलिए कि ईमान वो सरमाया है। बिलाल हबशी को नहीं देखते, हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया, मक्के की गलियों में पीटा गया, मक्के की गलियों में जख्मी किया गया, रेत पर लिटा करके सीने पे पत्थर रख दिया गया। उसके बावजूद भी मुनकिरीन इस्लाम उनका ईमान छीन न सके। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, मुझे बताओ, सिर्फ शादी की बुनियाद पर, सिर्फ घर बसाने के लिए तुम उस रसूल को छोड़ करके जा रही हो, उस रसूल का प्यारा दीन छोड़ करके जा रही हो। अल्लाह अकबर, जिसने जालिम माशरे में औरत को इज्जत अता की। लोग तो बच्ची पैदा होने के बाद बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे, किसने बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया? वो मेरा और तुम्हारा रसूल है, वो आमिना के लाल है। अल्लाह अकबर, शौहर की चिता पर औरतें जिंदा जलाई जाती थी, किसके निजाम पाक ने तुम्हें बचाया जलने से, मुर्दा होने से? उस रसूल ने। आज शादियों के नाम पे जिसे छोड़ने की बात की जा रही, आज माज़अल्लाह जिसका दीन छोड़ने की बात की जा रही, याद रखना, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक दिन दुनिया से कूच करना है। ईमान वालों के लिए आखिरत में हमेशा की राहत है और मुनकिरीन इस्लाम के लिए आखिरत में हमेशा का अजाब है। इसलिए दुनिया की रंगरेलियों के लिए और फिर मुनकिरीन इस्लाम से ताल्लुकात नाजायज पैदा करके क्या अंजाम को पहुंच रही है? अखबारात के तराशे कम है, मीडिया की रिपोर्टें कम है। आइए मैं आपको बताऊं, एक ऐसी लड़की जो ऐसे ही मॉडर्न रास्ते पर चलकर, ऐसे ही मॉडर्न बनकर किसी मुनकिर इस्लाम के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर बैठी। बहुत सारे उसने मामला कहे, हमें कोई पूछने नहीं आया, हमसे कोई रिश्ता मांगने नहीं आया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। जानती है उसकी दर्द भरी कहानी सुनो, जबान मेरी है बात उसकी। वो लड़की कहती है, इब्तिदा में तो कॉलेज से मुझे मोहब्बत का झांसा देकर एक लड़की सहेली बन गई, वो भी मुनकिर इस्लाम थी।
सहेली बनने के बाद उसने मुझे बहुत पटाया फुसलाया और मुनकरीन इस्लाम के त्यौहार में बुलाया, और बुलाने के बाद चंद लड़कों से मिलाया, ये मेरा भाई, ये कजन, और ये फुला और ये फुला, और बाद में इतनी आओ भगत की गई, इतनी जो है वो तोहफे ताइफ दिए गए। वो लड़की घर आती है, आने के बाद अपने माँ बाप को बड़ी तारीफ करती है कि वो फुला लोग तो इतनी इज्जत करते हैं लड़कियों की, और ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं और वैसा करते हैं। माँ बाप भी जो है वो मुतासिर हुए, माँ बाप के लिए भी तोहफे ताइफ भेजे गए थे। फिर उसके बाद वो सहेली बनने का नाटक रचने वाली लड़की जिसने लड़कों से ताल्लुकात कायम करवाए थे, उसमें से एक लड़का जो मुनकिर इस्लाम था, कलमे का मुनकिर था, अल्लाह अकबर, उस जालिम ने धीरे धीरे ताल्लुक पैदा किए, और ताल्लुक पैदा करने के बाद फिर घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हो गया। घूमने फिरने के सिलसिले के बाद फिर गिफ्ट और पता नहीं काय काय का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर जानती हो मेरी बहनों, याद रखना, अव्वल भी इस्लाम में अमन है, आखिर भी इस्लाम में अमन है। दीन को हल्का मत समझो, दीन छोड़कर कहीं ना जाओ। याद रखना मेरी बहनों, जब जब दीन को पीठ के पीछे डालोगी, तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं सब लोग, नहीं इससे पहले कभी आए थे, ना मरने के बाद इसके बाद कभी दुनिया में आओगी। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आना है। बर्बादी के चक्कर में ना पड़ो, दीन छोड़कर ना जाओ, मुस्तफा जाने रहमत का निजाम रहमत छोड़ करके ना जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, वो लड़की कहती है, अल्लाह अकबर, अपने इंटरव्यू के अंदर वो कहती है, जब उस सहेली ने लड़कों से राब्ता करा दिया और फिर उस लड़की का जहन बना दिया गया, जब खून एक है, आंख में आंसू एक है, दिल की धड़कनें एक जैसी है, और फिर ये एक जैसा और वो एक जैसा है, तो फिर शादी के रास्ते में मजहब रुकावट क्यों बने? किसी भी मजहब से शादी हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये फिक्र उस लड़की को दी गई। समझाने वालों ने समझाया, मनाने वालों ने मनाया, बहुत मेहनतें की गई, लड़की को समझाया गया, बेटी अपने मजहब का कानून कानून है, इसलिए कि अल्लाह का नाजिल किया हुआ कानून है। अल्लाह का इरशाद है कि कोई मोमिन औरत किसी मुशरिक से निकाह नहीं कर सकती, और कोई मोमिन मर्द किसी मुशरिका से निकाह नहीं कर सकता। बल्कि कुरान ने यहां तक कहा, अगर कोई मुशरिक तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें बहुत भाता है और तुम्हें बहुत पसंद आता है, तो उस मुशरिक आजाद से वो गुलाम बेहतर है जो मोमिन हो। मुशरिक आजाद से मोमिन गुलाम बेहतर है निकाह के लिए। और फरमाया कि किसी आजाद खूबसूरत मुशरिका से कोई कनीज बेहतर है जो वो रिश्ते के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ अहमियत ईमान को है, इस्लाम को है। लोग अपने अपने मेयार की बात करते हैं, लोग अपने अपने ताल्लुकात की बात करते हैं, लोग अपनी अपनी बिरादरियों की बात करते हैं। इस्लाम कहता है सबसे अव्वल ईमान है, सबसे अव्वल इस्लाम है। अल्लामा जामी कहते हैं, बंदे इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी, कि फुला इब्ने फुला चीजें नीस्त, इसकी उसकी औलाद कहलाना वो फख्र की बात नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी ये बड़ी चीज है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, उसी तरह की जैसे आजकल लड़कियों को भूत सवार है, लड़कों को भूत सवार है, ऐसे ही भूत सवार एक लड़की की दास्तान में आपको अपनी जबानी सुना रहा हूं, ताकि आंखें खोल लो और होशियार हो जाओ। मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तेरी गटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह अकबर। तो वो लड़की जिसे इश्क का भूत सवार था, ये कोई इश्क नहीं, जिसे मोहब्बत का भूत सवार था, ये कोई मोहब्बत नहीं। वो लड़की कहती है, सहेली का ढोंग रचने वाली लड़की ने जब लड़के से लड़कों से ताल्लुकात जुड़वाए और एक लड़के ने अल्लाह अकबर
ऑफर किया अफेयर का और मोहब्बत के झांसे में दे करके मुझे फांस लिया। फिर उसके बाद घूमना फिरना, तोहफे, ताइफ का तबादला, और एक दिन ये आया कि वो लड़की उस मुनकिर इस्लाम से शादी करने के लिए तैयार हो गई, निकाह करने के लिए उस मुशरिक से तैयार हो गई। और फिर क्या हुआ, समझाने वालों ने समझाया, रोने वाले रोए, आओ बुका करने वालों ने किया। याद रखना मेरी बहन, माँ बाप को का दिल दुखाकर कोई हज को जाए तो अल्लाह उसका हज कबूल नहीं करता। माँ बाप का दिल दुखाकर पूरे खानदान को बेचैन और बेकरार करके पूरी खानदान की नाक कटा के कोई शादी करे, अल्लाह उसे कैसे खुशी अता करेगा। और फिर क्या हुआ, उसने मुनकिर इस्लाम के साथ शादी तो कर ली, मुशरिक के साथ शादी तो कर ली, लेकिन फिर क्या हुआ, वो लड़की कहती है एक दो दिन चैन के गुजरे थे, फिर उसके बाद वो लड़की ने कहा वो दिन आया कि कमरे में मुझे दाखिल किया गया और कई लड़के वहां जमा थे और सारे लड़के मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। मैं अपने शौहर को पुकारती रही, आवाज देती रही, मगर उस जालिम ने मेरी कोई मदद न की और वो वहां पर खड़ा रहा। यहां तक कि कई मर्दों ने मुझे अल्लाह अकबर जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है वैसे मेरे साथ सुलूक किया, बदसलूकी की, और वो खड़ा हुआ तमाशा देखता रहा। यहां तक कि जब मेरी जान पर ये बार हो गया कि मैं मर सकती हूँ और अधमरी हो गई हूँ, उन जालिमों ने मुझे छोड़ा। मैं चीखती और चिल्लाती रही, आखिरकार जब मेरी जान भी उसके भी लाले पड़ गए तो फिर हाल ये हुआ जब वो छोड़ करके चले गए तो बाद में मैं जिसको अपना दोस्त, अपना शौहर, रफीक सफर समझती थी, उसने भी मुंह फेर लिया। और लास्ट में नौबत ये आई कि मुझे तवाइफ खाने में दाखिल करने का प्लान बन गया, मगर अब हालात ये थे, वो जिसको शौहर समझकर मैंने जिसकी मोहब्बत के झांसे में अपना घर छोड़ा, मजहब छोड़ा, सब छोड़ा, उसके लिए सारी कुर्बानियां दी थी। मैंने सोचा था कि ये रफीक सफर बनेगा जिंदगी के लिए, वो जालिम ने तो मुंह मोड़ लिया और तवाइफ खाने तक पहुंचाने की नौबत आ गई। लेकिन अल्लाह अकबर, अब मैं पलटकर माँ बाप की तरफ जाना चाहती थी तो वो माशरा भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार न था और उसने अल्लाह अकबर फिर ये दुख भरी कहानी सुनाई। आप जानती है मेरी बहनों, अल्लाह अकबर, फिर वो एक मदरसे में ला करके डालनी जाने वाली थी और मदरसे के दाखिले के लिए बात कही गई। हमने बहुत कोशिशें की, काविशें की कि किसी तरह मदरसे वाले उसको ले ले, मदरसे वालों ने कहा जिम्मा कौन लेगा। अल्लाह अकबर, ये सूरत हाल है, ये दर्दनाक, ये तो एक दास्तान हमारे सामने आई, ऐसी दर्जनों दुख की दास्तान है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, याद रखना, जो कौम खुदा से वफा न करे, वादहू ला शरीक से वफा न करे, जो कौम रसूलुल्लाह से वफा न करे, वो कौम किसी औरत से क्या वफा कर सकती है। इसलिए आवारगी की राह पे न जाओ। और फिर आपको बताऊं, ये नाजायज ताल्लुकात किसी मुस्लिम से हो या मुनकिर इस्लाम से हो, नाजायज तो नाजायज है, हराम तो हराम है। मेरी बहनों आपको बताऊं, दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह अकबर, जब मर्द किसी से अफेयर के मामलात करते हैं, नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, तो सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए, सिर्फ अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए। और याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा जो दुनिया में जिना करेगा मैं उसको आग का कुर्ता पहनाऊंगा, उसको आग का लिबास पहनाऊंगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत मूसा कलीम से अल्लाह ने फरमाया, जिसको मैं जब आग का कुर्ता पहनाऊंगा जिना करने वाले मर्दों को और औरतों को, जब मैं जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाऊंगा, वो इतना वजनी होगा कि अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, जिससे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, ऐसा कुर्ता जहन्नमी मर्दों को और जहन्नमी औरतों को आग का बना हुआ कुर्ता पहनाया जाएगा। मेरी बहनों बताओ, जब पहाड़ रेजा रेजा उस कुर्ते की वजह से होगा
ہوگا تو انسان کے جسم کا کیا بنے گا، انسان کے جسم کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا، اس فریبی اور مکار دنیا سے دل نہ لگاؤ، حرام کام نہ کرو، ناجائز تعلقات کی طرف جانے والی بچیاں، اللہ اکبر، خدا کرے ان کے کان تک آواز پہنچ رہی ہو، گزارش ہے، اللہ نے آبرو دی، عزت دی، اسلام جیسا مذہب دیا تو اس سے جڑ کر کے رہو، انتظار کرو۔ اللہ نے درختوں کی پتیوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، بالوں کی چمڑی پر جو بکریوں کی چمڑی پر جو بال اگتے ہیں، اللہ نے ان بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، تو اللہ نے کسی انسان کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے تمہارا مقدر لکھا، رشتے آسمان سے بن کر آتے، انتظار کرو۔ اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے بھی پڑھا لکھا بہت شوہر ملے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا ہے، یہاں ہر مراد کسی کی پوری نہیں ہوتی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یہاں جس کی ہر مراد پوری ہوئی ہو، مقبول سے مقبول ترین بندہ بھی اس دنیا میں آپ کوئی نہ کوئی مراد دنیا سے لے کر گیا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں وہ میرا ارادہ توڑ دیتا ہے، تب میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی کہ جو علی کا ارادہ توڑ دے وہ کتنی بڑی قوت ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہاں کوئی کتنا بھی مقبول بندہ ہو اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے۔ جب مقبولوں کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں، اپنی ہر مراد یہاں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ دنیا اسی کو کہتے ہیں جہاں ہر مراد پوری نہ ہو، ہر چاہا پورا نہ ہو، اور جنت اس کو کہتے ہیں کہ جو چاہو وہ سب مل جائے۔ یہ دنیا اور جنت میں فرق ہے، اس لیے یہاں ہر ایک کی ہر مراد پوری نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کمپرمائز کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔ تو یہ جو فکر ہے میں خوبصورت ہوں تو خوبصورت ہی شوہر ملے، میں بہت پڑھی لکھی ہوں تو پڑھا لکھا ہی ملے، کہیں نہ کہیں تقدیر سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری آنکھیں ایسی ہو، اللہ نے بنایا ایسی، آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، رضا میں راضی رہنا پڑے گا۔ میری جلد ایسی ہو تو ویسی ہو ضروری نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو اللہ کے فیصلے پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے، اور اگر اللہ کے فیصلے پہ بندہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے، اور جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، حالانکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، میں وہ حدیث پوری پڑھوں گا آج انشاءاللہ اور وہ پورا کر دوں گا، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، بڑی خوبصورت روایت یاد آئی، اور آپ سے بھی کہتا ہوں جو یہاں بہنیں موجود ہیں، فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے خواتین کو بہت بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یعنی اگر آپ بہو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہے تو آپ کو بھی اپنے بیٹے کو سمجھانا پڑے گا کہ جہیز کے معاملات کو ہم نظر انداز کریں، مانگنے کے معاملات کو نظر انداز کریں، کوشش کریں بغیر جہیز کی شادیاں کرنے کے، اور یہ کام بیٹے والے کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹوں کی ماں یہ ٹھان لے کہ میں نے بغیر جہیز کے غریب کی بچیوں کو بہو بنا کر لانا ہے، انشاءاللہ جہیز تو چند دنوں تک کام آتا ہے، لیکن کسی غریب کے دل سے دعا نکل جائے اللہ تمہاری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے شادی کے اخراجات کم ہونے چاہیے، عورتیں اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ دلہن کے گھر سے زیورات کا مطالبہ کرنے کی بجائے دولہے والے خود یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں لے جائیں گے، ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، واقعتاً سنت کے مطابق شادی کریں گے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اس پر ہم بند باندھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ دین سے نکلنے والی لڑکیوں کو ہم واپس سے ان کو ایمان اور یقین کی طرف بلا سکیں گے، اے خاتون جنت کی کنیزوں۔ لیکن اپنے ظالم معاشرے نے یہ کیا ہے کہ بچیوں کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے، اور طرح طرح کی رسومات کے اندر مبتلا کر کے بربادی کے دہانے پر پورے معاشرے کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے خواتین جو ساس بننے والی ہے، نندے بننے والی ہے، جٹھانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا کرے کہ جہیز کا خاتمہ ہو، جہیز کی رسم کا خاتمہ ہو۔ اب تو جہیز جوا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جیسے لوگ جوا کھیلتے ویسے آج لوگ رشتوں کے معاملے میں جو ہے اس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے کوئی جوا کھیلنے کے لیے وہ آ گئے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے لوگ رسول
रसूलुल्लाह की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछ लिया, ओ हाजी नमाजी बनने वालों और दीन के दावेदारों, मेरी उम्मत की बेटियां इर्तिदाद के फितने में मुब्तला हो रही थी, उस वक्त तुमने क्या कैरेक्टर अदा किया, क्या रोल अदा किया? उस वक्त तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? अगर तुम आलिम नहीं, तुम खतीब नहीं, तुम मुफ्ती नहीं, तुम मुहद्दिस नहीं, तुम लोगों को तो नहीं सुधार सकते, कम से कम अपने घर के एतबार से अगर चंद बच्चियों का बोझ तुम उठा लो और बगैर जहेज की शादियां शुरू कर दो, बगैर रसूमात की शादियां शुरू कर दो, तो क्या हमारी कौम की बच्चियों के ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती? लेकिन अफसोस है, बहरहाल अगर कौम के बड़े ये नहीं सोचते तो शादी करने वाली बच्चियां खुद ही कॉम्प्रोमाइज करने का जहन बनाए, अपनी ख्वाहिशात को कुचलने का जहन बनाए, सिर्फ ये फिक्र लेकर चले हमारा कोई मेयार नहीं, हमारा मेयार सिर्फ ईमान और इस्लाम है। बस जो मोमिन होगा उसके साथ अगर रिश्ता तय होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, और किसी गैर मोमिन को, किसी मुनकिर इस्लाम को ना हम देखने के लिए तैयार है, ना कबूल करने के लिए तैयार है। हर दुख उठा लेंगे लेकिन किसी मुनकिर इस्लाम से कभी नजरें नहीं लड़ाएंगे। उसकी बरकतें देखना इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी नस्लों को अता फरमाएगा। आइए इस सिलसिले में एक हदीस मुलाहिजा करें, बड़ी खूबसूरत सी हदीस है। अल्लाह अकबर, एक सहाबी थे, नौजवान सहाबी, बड़े बहादुर थे, मगर हबशी नस्ल थे, मोटे मोटे होठ थे, बड़े बड़े दांत थे, पक्का कलर था जिसे लोग काला रंग कहते हैं। मैं सहाबी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आपके बात समझ में आ गई हो कि पक्का रंग था, घट पक्का रंग, बिल्कुल जैसे हबशियों का रंग होता है वो हबशी थे, रंग पक्का था, मोटे मोटे होठ थे, बड़े बड़े दांत थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम के वो ऐसे भोले भाले सीधी तबीयत के सहाबी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी उनसे मिजाज फरमाते थे, मजाक करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो बारगाह रिसालत में आए, आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ फुला तू शादी क्यों नहीं करता? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ कौन शादी करेगा? मदीने के लोग खूबसूरत है, मालदार भी है, मदनी लोग गैर मदनी को बेटियां नहीं देते, हबशी को क्या बेटी देंगे? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हुजूर ने फिर फरमाया, तू शादी क्यों नहीं करता? दूसरी बार कहा, उनकी आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आदत थी, हुजूर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दिल बड़ा नर्म था, हुजूर ने कभी किसी की आंख में आंसू नहीं देखे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उस सहाबी की आंखों में, नौजवान सहाबी हबशी थे, आंख में आंसू आ गए। हुजूर मदीने के लोग कौन बेटी देगा मुझे? करीम आका का दरियाए करम जोश में आया और मेरे रसूल ने, सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ जाओ और फुला जो बड़ा खूबसूरत कबीला है, बड़ा मालदार कबीला है, उस घराने में बड़ी खूबसूरत बेटी है, जाकर उनके दरवाजे पे दस्तक दो और दस्तक देने के बाद उनसे कहना कि मैंने सलाम का, मेरा सलाम पहुंचाओ, और उनसे कहना कि अपनी बेटी का निकाह का रिश्ता वो तुम्हारे साथ तय कर दे। अल्लाह अकबर, खुशनसीबी ये थी कि अगर वो हाँ कर दे तो अल्लाह के रसूल निकाह में खुद तशरीफ लाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में खुद शिरकत होगी। वो गए और दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक देने के बाद दरवाजा खुला। उस सहाबी ने, जो मालदार भी थे, खूबसूरत कबीले से ताल्लुक था, खूबसूरत बेटी रखते थे, उन्होंने पूछा, इस वक्त तुम? तो पूछा, इस वक्त तुम? तो अर्ज किया कि मैं अल्लाह के रसूल की तरफ से आया हूं, हुजूर ने आपको सलाम कहा है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है, खुशनसीबी मेरी। और क्या बात है? कहा, अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा। सलाम का और भी कोई बात है? हाँ, आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो, हुजूर का हुक्म है। अब उन्होंने देखा सर से लेके पैर तक कोई इंसान, वली हो, सहाबी हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, लेकिन दिल में औलाद के लिए जज्बात कमोबेश एक ही होते हैं। बाप बाप होता है, डिग्री कोई हो, बाप बाप होता है, इंसान की सलाहियत कोई हो, बाप बाप होता है। एक बाप के दिल में औलाद के लिए जो जज्बात होते हैं वो बाप ही के दिल में हो सकते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक उस जवान को देखा और उसके बाद ख्याल आया, अगर हाँ कर दूं, इतनी खूबसूरत बेटी को हबशी के बंधन में बांध दूं, जिसका खुद का मकान
भी नहीं, कोई कारोबार भी नहीं, कोई खाता पीता घर नहीं, अल्लाह अकबर, तो मैं अपनी बेटी को कैसे मनाऊंगा? एक अपनी बेटी के मुस्तकबिल को एक हबशी के बंधन से बांध दूं। और दूसरी तरफ ख्याल आया, अगर ना कहूं तो हुजूर के हुक्म का इनकार होगा, ईमान उस तरफ खतरे में है, एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है, एक तरफ अपनी आखिरत है, जवाब क्या दूं? फौरी तौर पे कहा, रुको, ठहरो, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। और जैसी बीवी के पास जाकर के बात रखे, इससे पहले कि उनकी बीवी कुछ कहती, खूबसूरत हसीन और जमील बेटी जिसकी वाकई तरबियत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साये में की गई थी, माँ बाप कुछ और फैसला करते, उस जब वो खूबसूरत सी लड़की ने जवाब दिया, अम्मी और बाबा, ना कहने की जरूरत नहीं है, आने वाले हबशी को देखने की जरूरत नहीं है, भेजने वाले मुस्तफा जान रहमत को देखा जाए। तुम्हारी बेटी कितनी खुशनसीब है कि अल्लाह अकबर, किसी का रिश्ता माँ बाप तय करते, दादी दादा तय करते, नाना नानी तय करते, कबीले के लोग तय करते, तुम्हारी बेटी का रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तय किया, आमिना के लाल ने तय किया। हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर गुर्बत को बर्दाश्त कर लूंगी, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लूंगी, मगर हुजूर को नाराज नहीं करूंगी, अल्लाह के हबीब को नाराज नहीं करूंगी। बाबा, आने वाले हबशी को देखने की जरूरत नहीं है, भेजने वाले मुस्तफा जान रहमत को देखा जाए। जल्दी से हाँ कर दे बाबा, मैं यकीन दिलाती हूं हर दुख दर्द सह लिया जाएगा। और उसके बाद फिर हाँ कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी, इतना खुश हुए मेरे आका ने उस बच्ची को दुआ दी, आका ने दुआ दी, अल्लाह तुझे खुश रखे। हुजूर ने दुआ भी खुश रखे। खुदा की कसम, मेरे नबी की दुआ, जाने दुआ की दुआ क्या है, अगर वो किसी को प्यार से देख ले तो उसकी नस्लों का मुकद्दर संवर जाए। हुजूर किसी के लिए दुआ करे तो हुजूर की दुआ क्या है? मेरे इमाम कहते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद। फिर क्या हुआ? हुजूर ने दुआ दी और दुआ देने के बाद हबशी से निकाह हो गया। चंद ही दिन में अल्लाह ने उस हबशी को बड़ा कारोबार भी दे दिया, अच्छा घर भी दे दिया। मदीने की औरतें आपस में बातें करती थी कि सबसे ज्यादा खर्चीला अगर मदीने में कोई घर है, मदीने मुनव्वरा में, तो वो उसी लड़की का घर है जो मदनी होकर हुजूर की खुशी के लिए हबशी के साथ शादी कर चुकी है। अल्लाह के रसूल की दुआ ने उसकी जिंदगी को जन्नत निशान बना दिया, खुशियों से भरपूर कर दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, क्या समझी आप? हुजूर की दुआ के लिए, हुजूर की दुआ लेने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेने के लिए, हुजूर को खुश करने के लिए, सिर्फ ईमान और इस्लाम पर ख्याल रखो कि अपना कोई मियार नहीं है, इस्लाम हमारा मियार है। जहां ईमान और इस्लाम हो, इसलिए कि इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी डिग्री है। सारी कागज की डिग्रियां जो दुनिया की है, मैं उसकी अजमत का और उसकी अहमियत का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उसे हिकारत की नजर से देखता हूं, लेकिन याद रखना, सारी कागज की डिग्रियां कब्र के बाहर रहेगी, ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी। और इस डिग्री की शान ये है, जब ईमान की डिग्री लेकर के जाओगी तो फरिश्ते भी ताजीम करेंगे। इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, इसलिए अपना मियार ये होना चाहिए। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक औरत देखी जहन्नम के अंदर, अल्लाह अकबर, जिसके दोनों हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है, हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है, और वो जहन्नम में लटकी हुई है। सैयदा ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो जनाबत से, हैज़ और निफास से पाक होती थी तो वो गुस्ल नहीं करती थी। अब मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता, बहनें बेटियां माएँ सब है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि
मुफ्ती साहब किबला हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा से आपने मसाइल पूछे हैं। सिर्फ हया के पर्दे में इतना कहना चाहता हूं कि 7 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के अय्याम खत्म हो जाए, औरतों को चाहिए वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे। बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के दिन खत्म हो जाए, गुस्ल करो और नमाज शुरू कर दो। ये हमारे इलाके में नासिक से लेके बुरहानपुर तक ये जितना पट्टा है और फिर उधर दक्कन का पट्टा, इस तरफ ये देखा जा रहा है, सुना जाता है कि औरतें पाक होने के बाद भी, नापाकी के अय्याम खत्म होने के बाद भी, बच्चे की विलादत के बाद चिल्ले का इंतजार करती रहती है, 40 दिन का इंतजार करती रहती है, नमाज शुरू नहीं करती, रोजे छोड़ती रहती है। ऐसी औरतों के लिए वईद है ये कि उनके बालों से उनको बांध कर जहन्नम में लटकाया जाएगा। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये मसला मैं बहुत ओपन बयान नहीं कर सकता, आप निहाई तकद्दुस माब है हमारे लिए, लेकिन हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया से मना फरमाया है। इसलिए मैंने जितना हो सका हया के पर्दे में अर्ज कर दिया। यहाँ आलिमा मौजूद है, मुअल्लिमात मौजूद है, तफसीलात आप उनसे मालूम कर लो। मगर याद रखो, जब नापाकी के दिन खत्म हो जाए, गुस्ल करने में ताखीर करने पर हुजूर ने वईद बयान फरमाई है कि बालों से बांध कर हाथ और पैर को जहन्नम में लटकाया जाएगा। और फिर उसी के साथ साथ जब जनाबत की गुस्ल की हाजत हो तो भी बहुत देर तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, आधे आधे दिन तक उसी हालत में न रहो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए। क्योंकि जहां जनाबत वाले मर्द और औरतें रहते हैं, वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसका ख्याल करें। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5वीं औरत जहन्नम में देखी गई। आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5वीं औरत जो जहन्नम में देखी गई, उसका चेहरा खिंजीर की तरह था और उसका पूरा जिस्म गधे की तरह था। चेहरा सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह, और वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल जहन्नम का मुशाहिदा करके सैयदाए कायनात और मौला अली के सामने बयान फरमा रहे हैं। और बहुत कम रिवायतें ऐसी जिसको सैयदा ने रिवायत किया है, जो रिवायत में पढ़ा इसको सैयदाए कायनात ने भी रिवायत किया, मौला अली ने भी रिवायत किया। थोड़ा तसव्वुर करो मेरी बहनों, आका फरमा रहे एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 चीजों की वजह से। जिसका मुंह सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह था, वो औरत में 2 गुनाह थे, वो 2 गुनाह करती थी। नंबर 1 झूठ बोलती थी, नंबर 2 चुगली करती थी। एक तो झूठ बोलना, नंबर 2 चुगली करना। आज तो औरतें झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझती, ऐसा लगता है जैसे झूठ पर औरतों ने डबल PhD कर ली है। ये हालात है औरतों का, खवातीन का। हालांकि मर्द भी झूठ बोलते हैं, झूठ तो बल्कि आम ही हो गया है। अल्लाह अकबर, सोचो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अल्लाह की बंदियों, सूअर जैसा मुंह होगा झूठ की वजह से, गधे जैसा जिस्म होगा। ये मजहब इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के रसूल, झूठ न बोलो, झूठ से कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये तो मुनाफिक की निशानी है। झूठ ना बोलो, अपने बच्चों को भी झूठ से बचाओ। और एक बात ये भी याद रखना, 95% लोग झूठ इसलिए बोलते हैं बंदों की नाराजगी से बचने के लिए। मैं कहता हूं 1000 नाराजगियां मोल ले लो, अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी रखो। और दूसरी चीज चुगली, चुगली भी बड़ी खतर। चुगली का मतलब क्या? चुगली किसे कहते हैं? चुगली का मतलब इधर की बात उधर लगाना। आज से 50 साल पहले तक के लोग कहते थे औरतें चुगलखोरी करती है, लेकिन अब तो मर्द भी चुगलखोर हो गए, इल्ला माशाल्लाह। इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, ये चुगली है चुगली। अगर चुगली से आदमी बच जाए, चुगली से इंसान बच जाए, तो दुनिया के 90% झगड़े खत्म हो जाए। घर के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये झगड़े चुगली की वजह से, इधर की बात उधर, सास की बात जिठानी तक, जिठानी की बात देवरानी तक, देवरानी की बात फुला तक, ननन तक, ये सब
सब चीजें होती हैं और ये झगड़े इसमें होते हैं। फिर ये चुगल खोरियां कभी कभी तलाक तक की नौबत ले जाते हैं, इसलिए चुगली से बचो। एक बात है इमाम गजाली ने लिखी है, मैं अर्ज कर दूं, सुन ले। अल्लाह अकबर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार पीट कर कुएं में डाल दिए और उनका कुर्ता उतार लिया, बकरी के खून में बहाकर, बकरी के खून में भिगा करके रोते पीटते आए और अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा यूसुफ को भेड़िया खा गया, और सबूत के तौर पे एक भेड़िया भी पकड़ लाए। इमाम गजाली लिख रहे हैं अपनी तफसीर में कि सबूत के तौर पे कितने लोग जो है वो कैसी कैसी साजिशें करते हैं। बकरी के खून में कुर्ता डुबो लिया और भेड़िया भी पकड़ लिया सबूत के तौर पे, कि कितना पक्का सबूत है। याकूब तो अल्लाह के नबी थे अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल जब वो कुर्ता पेश किया तो कुर्ता आपने देखा, तो देखो जब इंसान गलती करता है तो कोई ना कोई पॉइंट छोड़ ही देता है। तो कुर्ता देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम हंसने लगे रोते रोते। कहा कितना होशियार भेड़िया था कि पूरा यूसुफ खा गया, और कुर्ता जैसा कि वैसा ही। भाई जब जानवर किसी इंसान को खाएगा तो पहले कुर्ता फाड़ेगा ना, तो कुर्ता तो जैसा कि वैसा ही है और पूरा इंसान खा गया। कैसा होशियार भेड़िया था। तो कहने लगे बाबा यही भेड़िया था, ये खड़ा, इसको हम पकड़ के लाए। तो हज़रत याकूब ने रोते हुए कहा, ओ भेड़िए, मेरे यूसुफ को, खूबसूरत यूसुफ को खाना तुझे कैसे गवारा हो गया, तूने कैसे खा लिया। तो चूंकि नबी थे ना याकूब अलैहिस्सलाम, तो भेड़िए ने नबी से बात की और भेड़िए ने कहा, अल्लाह के नबी, आपका यूसुफ सिद्दीक भी नबी है और अल्लाह ने जानवरों पे हराम किया है नबी को खाना, मैं नबी को कैसे खा सकता हूं। मैंने नहीं खाया, इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए। मैं तो अपने दूध शरीक भाई को ढूंढने निकला हूं और ये मुझे पकड़ करके लाए। तो तब हज़रत याकूब ने कहा, बताओ मेरा यूसुफ कहाँ है। कहा मैं जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं। कहा क्यों नहीं बताएगा। कब बताऊंगा तो चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता, चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता। इमाम गजाली फरमाते हैं वो भेड़िया होकर चुगली से बचा, अल्लाह को उसकी यादा इतनी पसंद आई कि कयामत के दिन वो भेड़िया जन्नत में दाखिल किया जाए। मेरी बहनों सोचो, अगर भेड़िया चुगली से बच जाए तो इमाम गजाली लिख रहे हैं कि वो भेड़िया जन्नत में जाएगा। सोचो तो सही, अंदाजा तो फरमाए। जैसे असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी, इसी तरह से वो भेड़िया भी जब वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों चुगली से बचो। और आखिरी बात और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छठी औरत को देखा गया, छठी औरत, उसका हाल ये था कि वो कुत्ते की शक्ल में थी। छठी औरत कुत्ते की शक्ल में थी और उसके मुंह में आग दाखिल की जा रही थी। छठी औरत जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में थी और उसके मुंह में आग डाली जा रही थी और पाखाने के मकाम से आग निकल रही थी। अल्लाह अकबर। ये उसके साथ हो रहा था और जहन्नम की आग के चाबुक से उसकी पिटाई की जा रही थी। ये उसका हाल था। तो सैयदा ने अर्ज की, बाबा जान, वो औरत जो कुत्ते की शक्ल में उसका मुंह कर दिया और मुंह में आग डालकर पाखाने के मकान से आग निकल रही थी और जब वो जहन्नम की आग के गूजे से, चाबुक से उसको मारा जा रहा था, उसका क्या कसूर था। तो आका ने फरमाया वो औरत देकर एहसान जताने वाली थी। यानी किसी पे एहसान करके एहसान जताना। जैसे ऐसे होता है ना, कोई गरीबी में होता है, फिर आपके यहाँ बर्तन झाड़ू करने आती है, या कोई गरीब में होती है, नंदे गरीब होती है, बहनें गरीब होती है, भाई गरीब होते हैं, रिश्तेदार गरीब होते हैं। आपकी पोजीशन अच्छी है तो आप उनकी मदद करते हैं। फिर कभी आप उनको किसी काम के लिए कहते हैं, वो नहीं करते तो कहते भूल गए अपने पिछले दिन, हम ही तो तुम्हारा बोझ उठाते थे, हम ही तो तुम्हारी मदद करते थे। या फिर गुर्बत के दिन उनके खत्म हो जाते, वो भी मालदार हो जाते, तो लोगों को बोलते फिरते, अरे जब इसके दिन अच्छे नहीं थे, कोई मुंह नहीं लगाता था तो हम पालते थे, हम खिलाते थे, बच्चों की फीस हम भरते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। कहा फरमाया जो देकर एहसान जताए। एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम है जो देकर एहसान जताते। एहसान करके एहसान जताते, एहसान करके एहसान मत जताओ। मुंह कुत्ते का होगा, मुंह में आग डाली जाएगी और आग की लगाम से, अल्लाह अकबर, आग के चाबुक से जिस्म को मारा जाएगा। इसलिए किसी पे एहसान करो, अल्लाह के लिए करो, भूल जाओ, एहसान ना
जताओ, किसी की भी मदद करो अल्लाह के लिए, एहसान जताना छोड़ दो। तो देखते औरतें तो नमक देती है तो भी एहसान जताती, औरतें चप्पलें देती तो भी एहसान जताती। याद रखना, एहसान करके एहसान ना जताओ, और अगर जताने की आदत है तो एहसान ही ना करो फिर। और ऐसी बात नहीं करता आपसे, लेकिन इतना कहता हूं एहसान जताने से तौबा करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको मुझे सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।